Hey guys, what's up? Welcome back to today's video. So once again, I'm here with all of you and we will be studying something related to your favorite paper, which is KVPY. Okay, so for those guys who have no idea about what KVPY is, let me begin by sharing what actually KVPY is. Okay, so KVPY basically stands for Kishore Vigyanik Protsahan Yojana. ठीक है, it's a fellowship program जहाँ पर you will be given a title which is the young scientist of India. ठीक है, and इसके साथ साथ you will also be provided with the fellowship अगर you clear the paper as well as pass the interview. ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया है दिस केवीपीवाई सीरीज, तो सुबह 8 बजे मंडे मॉर्निंग आई एम ऑलवेज देयर विद यू एंड today also I have got some very super interesting questions which have been asked in previous year KVPY paper. ठीक है, so I hope everyone is ready to crack KVPY questions on An Academy class 11-12 channel. So with a very great smile on your face, है ना, और हाथ में एक एक पेन और पेपर ले लो बिकॉज वी हैव टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू केवीपीवाई. ठीक है, सो गाइस डू मी वन फेवर बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दो विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, ताकि मतलब क्योंकि अन अकेडमी ने ये जो मिशन स्टार्ट किया है ना, केवीपीवाई तुम लोगों का क्रैक हो जाए, है ना, ऐसा ये कितने सारे बच्चों का ड्रीम होगा. तो व्हाई नॉट शेयर दिस थिंग विद एवरीवन सो दैट हर एक को मौका मिले अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए, राइट? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. एंड यहाँ पर भी इस सेशन में लाइक द प्रीवियस सेशन आई विल बी डिस्कसिंग a few questions which are one marker जो KVPY में already पूछे जा चुके हैं and certain questions which are two marker questions जो कि you will be practicing. ठीक है, so here let me present the very first question. Okay, so before I get started guys, let me first of all tell something about myself because there are many students I can see who are new to the video, है ना. So let me give my introduction. My name is Sakshi Vora and I am a pass out of IIT Roorkee. जब मैं 10th में थी, जब मैं 12th में थी, आई वॉज अ CBSE स्टेट टॉपर. नॉट ओनली अ CBSE स्टेट टॉपर गाइज, जब मैं 12th में थी आई हैड रिटन दिस KVPY एग्जाम एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर KVPY फेलोशिप. तो यार अब एटलीस्ट तुम मुझसे कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि मैं खुद एक KVPY फेलो रह चुकी हूँ. आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग द एग्जाम कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. मैंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, देन अटेम्प्ट किया एग्जाम, then I got selected also, plus I got selected for the interview also, है ना. तो वो सारी चीजें I will be sharing all my experiences. I'll try to share in this particular video ताकि तुम एक realistic तरीके से पढ़ाई कर सको. ठीक है, okay, so after having done my graduation and post graduation I started teaching and now it has been 7 years I have been teaching chemistry to students like you जो JEE के लिए, नीट के लिए, CBSE के लिए, KVPY और बहुत सारे other competitive exams के लिए prepare कर रहे हैं. ठीक है, तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बच्चे चैट में पूछते हैं कि मैम वेयर शुड वी आस्क क्वेश्चंस, मैम वेयर विल वी बी गेटिंग नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आपकी क्लासेस कब होती हैं, कब आप ऑनलाइन आते हो, कब आप स्पेशल क्लास लेते हो, राइट? Many of you are having that query, right? So let me help you out. What you have to do, ये URL टाइप करना livedaily.me/chat. ठीक है, so once you type this URL you will be directed to this telegram channel Unacademy class 11-12. यहाँ पर already you can see so many members are there, है ना. तो अब अगर you will also be a part of this particular telegram group, you will be getting notification related to every single session जो YouTube पे होता है, जो हम स्पेशल क्लासेस लेते हैं, तो प्रॉपर नोटिफिकेशंस विल बी सेंड टू यू. ठीक है, इसके अलावा लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. सपोज आज मैंने KVPY के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है, एंड लेट्स से आई फाउंड दोस क्वेश्चंस रियली हेल्पफुल, तो आई वांट टू शेयर द क्वेश्चंस विद यू. ठीक है, तो मैं कहाँ शेयर करूंगी? दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई विल बी शेयरिंग द क्वेश्चंस विद यू. तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑल ऑफ अस कैन इंटरैक्ट, है ना. सारे के सारे जो नोट्स होंगे, जो PDF होंगे, आई विल बी अपलोडिंग हियर ऑल्सो. ठीक है, सो इस सेशन के भी PDF नोट्स विल बी अवेलेबल, हर पर्टिकुलर सेशन के PDF नोट्स विल बी अवेलेबल टू. तो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर अडू तुम्हें ये फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, राइट? ओके,
नाउ गाइज वन मोर थिंग जो कि अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे चैट्स में पूछते हैं, लाइक व्हेन आई गो थ्रू द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो, मतलब नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर वीडियो, मैं कोई भी वीडियो उठाऊं उसमें कहीं ना कहीं ये वाले कमेंट्स होते हैं कि मैम हाउ शुड वी गेट योर रेगुलर क्लासेस, हमें आपकी प्लस की क्लासेस पे पढ़ना है, प्लस क्या है, प्लस की क्लासेस कैसे होती हैं, व्हाट इज द प्राइस वी हैव टू पे फॉर प्लस क्लासेस, है ना। तो मैं इस क्वेरी को थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। अगेन इफ यू पीपल विल बी इंटरेस्टेड, ये सारी चीजें आई विल बी रिपीटिंग इन द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, डू मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग द सेशन टिल द लास्ट सो दैट आई कैन टेल यू ऑल द डिटेल्स। फाइन। तो देखो यार, यूट्यूब पे तुम्हारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, इसके अलावा यू ऑल कैन अटेंड स्पेशल क्लासेस। तो करोगे क्या, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर मतलब किसी भी टीचर को तुम फॉलो करो, मतलब यू कैन फॉलो सो मेनी टीचर्स, लाइक फॉर एग्जांपल माय आईडी इज Vora2704. So if you follow this ID, you will be able to see all the recorded special classes. Plus जो मैं live special class लूंगी, वो also you will be able to attend. ठीक है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो फॉर अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पर तुम्हें प्लस की क्लासेस अवेल हो जाएंगी। नाउ प्लस की क्लासेस के साथ व्हाट इज प्लस की क्लास, इट्स बेसिकली लाइव क्लास विच गोज ऑन लाइक विच इज गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। Not only me, there are so many educators like me who are teaching daily, regularly, live on this Plus platform. Along with Plus classes, तुमको एक्सेस मिलेगा बहुत सारे क्विज सेशंस का, बहुत सारे अच्छे टेस्ट का. So you will be also given a unique ID password for the test series also, जिसमें तुम टेस्ट लिखो, टेस्ट का एनालिसिस देख सकते हो. You can have regular doubt removal classes with your teachers. तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे बहुत इजीली अवेलेबल है. Now what you have to do is just say कि you are a student who is in grade 11th, ठीक है, जिसको grade 11th और 12th 2 साल के लिए पढ़ाई करनी है before you write your board exams, or let's say before you are writing your JEE और NEET का पेपर और KVPY का पेपर, ठीक है. So the best possible option for you is you can go for a 2-year subscription. अब देखो इस 2-year subscription का फायदा क्या है. लेट्स से तुम ग्रेड 11th में हो, प्रेजेंटली यू आर इन ग्रेड 11th, ठीक है, एंड यू आर लाइक कि मैम मुझे 11th की सारी वीडियोस देखनी है, तो तुम देखोगे. बट लेट्स से 12th के कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो 11th से बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है और बहुत मैच करते हैं. तो यू आर लाइक कि मैम इज इट पॉसिबल कि मैं 11th में ही 12th की वीडियोस देख लूं विद अनअकैडमी? यस इट इज पॉसिबल, ठीक है. तो यहाँ पर ये फीचर भी है दैट अगर तुमने 2 ईयर का कोर्स लिया और तुम ग्रेड 11th में हो, है ना, तो यू कैन ऑल्सो वॉच ग्रेड 12th के सेशन साइमल्टेनियसली. मतलब इट्स ऑल अप टू जितना तुम मैनेज कर सकते हो उतना देखो, ठीक है. सिमिलरली सपोज अगर देयर इज अ स्टूडेंट हु इज इन ग्रेड 12th, तो भाई क्या फायदा होगा कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो. अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं 1 साल का सब्सक्रिप्शन लूंगा तो मैम मुझे 11th रिवाइज करनी है, सो डू आई नीड टू बाय अनदर सब्सक्रिप्शन फॉर दैट? नो. अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो यू विल बी एबल टू वॉच फॉर बोथ 11th एज वेल एज 12th की वीडियोस. मतलब दिस इज अ न्यू फीचर दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड आई थिंक दिस इज लाइक वेरी वेरी यूजफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी अब प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, है ना. ओके, सो लेट मी टेल यू द प्राइसेस. पहले जो प्राइस था फॉर 1 year was 15K and for 2 year was 25K, ठीक है. But I'll tell you one thing, what you all can do. There is this code Sakshi Live, okay? If you use this code now, so you will be getting a direct 10% discount on the price. तो अब क्या पड़ेगा, 15K की बजाय सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 13.5K का, that's it. And 25K की बजाय now the prices are just 22,500. अब ये सोचो, मतलब इन प्राइसेस के अकॉर्डिंग तो यू हैव टू पे लेस देन 1000 पर मंथ. भाई व्हाट इज बैड, 1000 पर मंथ भी यू आर नॉट पेइंग एंड यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स. जितनी क्लासेस तुम्हें अटेंड करनी है यू कैन अटेंड ऑल द क्लासेस, घर बैठे बैठे करोगे. तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड फीचर विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एक फुल फ्लेजेड तरीके से पढ़ाई करने के लिए, you can definitely go for Unacademy's Plus subscription.
ठीक है। सो अभी भी जब मेरी वीडियो चल रही है तो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, है ना, जिन्होंने ऑलरेडी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। So you all guys can discuss among each other, है ना, क्या फायदे हैं and everything you guys can discuss. So once you feel good, definitely go for Unacademy's plus subscription. ठीक है, चलो, तो जिनको जो बच्चे इंटरेस्टेड है, stay with me till the end of the session. I will be telling you more details कि प्लस पर अगर जा रहे हो तो क्यों जाना चाहिए और कैसे you can go for the subscription. Okay. Chalo. So now let's get started with one marker question. So the first one marker question I am going to present here. So I think सब लोगों को screen पे ये वाला question दिखाई दे रहा है ना? Among the following, the correct statements is. 4 statements दे रखे हैं, ठीक है? तुम्हें बताना है कि इन 4 में से correct statement. देखो मेरी बात सुनो. बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, अपनी मर्जी से करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन आए तो उसको सर्कल कर लिया करो, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन तो बात की बात है। चलो, तो ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ग्रेड 11th में एक चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। आई होप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम की बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ली है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, माय आईडी इज वोरा 2704। यू कैन अटेंड द रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस एज वेल एज माय लाइव स्पेशल क्लासेस, और मेरा टाइम है 2 PM to 3 PM। यहाँ पर फॉलो कर लेना इस आईडी को सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन, ठीक है? The question is कि pH डिक्रीज होता है when solid ammonium chloride is added to a dilute aqueous solution of ammonia. Okay, pH decreases when solid ammonium acetate is added to dilute aqueous solution of acetic acid. pH decreases when solid NaCl is added to dilute solution of aqueous solution of sodium hydroxide, and pH decreases when solid sodium oxalate is added to dilute solution of oxalic acid. मतलब चारों के चारों ऑप्शंस में ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि we are talking something about एक बेस या एक एसिड है, वीक एसिड वीक बेस है, ठीक है? और उसके अंदर मैंने क्या डाला, एक सॉल्ट डाला जिसके अंदर एक कॉमन आयन है। तो इसका जो फर्दर टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट CIE, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन। चलो एक एक करके ऑप्शंस देखना शुरू करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो गाइस, कहीं पर भी तुम्हें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया दिखाई देना तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये पानी में, मतलब इक्विलिब्रियम में कैसा रहेगा, ये रहेगा अमोनियम प्लस प्लस OH माइनस में, ठीक है? इतना तो समझ आया। अब मैंने क्या ऐड किया, आई एम एडिंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। तो जब मैं अमोनियम क्लोराइड ऐड करती हूँ, है ना भाई साहब, ध्यान से समझो, ये था हमारा ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम। अरे मैंने जगह नहीं छोड़ी, अदरवाइज इट वुड बी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन, बट ठीक है। देखो ये हमारे पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम था, है ना? इसके अंदर मैंने एक सॉल्ट डाला जिसमें अमोनियम है, और अमोनियम तो कॉमन आयन है। अब क्योंकि कॉमन आयन हमने डाला तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड। अगर रिएक्शन बैकवर्ड चली गई तो सोचो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल डिक्रीज। और अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई तो डेफिनेटली pH विल बी डिक्रीज, एंड हेंस चलो बाय चांस हमारा यही सही आंसर आ गया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज A। समझ आ गया सबको हाउ दिस क्वेश्चन वाज टू बी डन? क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, पहले एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बेसिक इक्वेशन मैंने लिख दी, फिर मैंने बोला कि मैंने एक सॉल्ट डाला अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड में एक अमोनियम आयन था जो कि इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के साथ कॉमन आयन था, तो इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और अगर OH माइनस कम हुआ मतलब pH will also decrease। तो A was the correct answer for this question। समझ आ गया सबको? आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉमन आयन इफेक्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। तो जो बच्चे KVPY के लिए लिटरल सेंस में प्रिपेयर कर रहे हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आयनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से पढ़कर जाना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है?
So with this spirit, let's move on to our second question. अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी बताती हूँ कौन से टॉपिक से है. इतने टेक सम टाइम, रीड द क्वेश्चन, पता करो क्या आंसर है. So let's see कि who all will be writing the correct answer in the comments. सबसे पहले correct answer कौन लिखता है? Among the following, the incorrect statement. सबसे पहले तो मैं इसको सर्कल कर लेती हूँ. उसने incorrect statement पूछी, ठीक है? No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. अरे ये क्वेश्चन तो है अगेन ग्रेड 11th का, ठीक है? कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2. आगे कौन सा है ये? स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो जिन बच्चों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैंने YouTube पर अनअकैडमी क्लास 11th 12th चैनल पर सर्च माय नेम साक्षी गनोत्रा और यू कैन सर्च इट साक्षी वोरा. वहां पर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिखना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. So many videos have been recorded for this chapter, ठीक है? और जितने डिटेल में I have taught, मैं गारंटी देती हूँ that will be really helpful and you won't regret afterwards, ठीक है? चलो, so पहला ऑप्शन है no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. ये तो सही है ना? बताओ ये कौन सा रूल है? This is a rule. What is the name of rule? I want everyone to write in the comment section. कौन से रूल के अकॉर्डिंग कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एटम में 4 सेम क्वांटम नंबर नहीं रख सकते. एटलीस्ट वन ऑफ द क्वांटम नंबर हैज टू बी डिफरेंट, ठीक है? तो ये तो सही स्टेटमेंट है. दिस विल नॉट बी आवर आंसर. The maximum number of electrons in a shell with the principal quantum number n is equal to n square plus 2. यहाँ पर n स्क्वायर है, कंफ्यूज मत होना. दिस इज n स्क्वायर प्लस 2, ठीक है? ये तो गलत नहीं है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a shell with the principal quantum number? This is not n square plus 2. Let me write down the correct answer in the chats. I am still waiting for all of your answers. बताओ what is the correct number? तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि मैम B is the answer because उसने incorrect statement पूछी, ठीक है? Now third statement पढ़ देती हूँ. Electrons in an orbital must have opposite spin. ये भी ठीक है कि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों के दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए. In the ground state, atomic orbitals are filled in the order of their increasing energy. ये भी ठीक है. तो वो जो रूल्स है ना, अफबाउच प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उनकी डायरेक्ट डेफिनेशन आई हुई है. ये KVPY 2018 का क्वेश्चन है, तो देख लो तुम्हारे सामने. अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो KVPY is all yours, ठीक है? I hope this question is also clear to everyone. I am still waiting for answers in the comments. पहले तो मुझे रूल का नाम बताओ और बताओ what is the maximum number of electrons in a shell with principal quantum number n. Let me wait for your answers, ठीक है? चलो, so guys, now let us move on to the third question. पढ़ो, ये क्वेश्चन है अगेन चैप्टर नंबर 5 if I'm not wrong, states of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का ये क्वेश्चन है. लेट मी नो व्हाट्स द आंसर. फटाफट से पढ़ो. अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम, so the question is a container of volume 2.24 liters can withstand a maximum pressure of 2 atm at 298 Kelvin before exploding. मतलब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ना एक कंटेनर है, एक डब्बा है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है 2.24 लीटर. सही बात है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. एक डब्बा है और इसका वॉल्यूम कितना है? 2.24 लीटर. यार देखो, मुझे तो ना जब भी मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का, लेट्स से मुझे वो क्वेश्चन से डर लग रहा है, तो मैं मतलब क्या करती थी बचपन से, वो सारा का सारा डेटा कहीं पर लिख लिया ताकि I do not have to reread the question again and again, ठीक है? So जिन बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन से डर लगता है, यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस ऑफ राइटिंग और यू कैन सर्कल द डेटा, ठीक है, ताकि यू डोंट हैव टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन. फाइन. देखो, सो क्या क्वेश्चन है? अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2.24 लीटर कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम प्रेशर. वो कह रहा है कि ये हद से हद कितना प्रेशर सहन कर सकता है? 2 एटमॉस्फेयर. इसके ऊपर हम कितना प्रेशर लगा सकते हैं? 2 एटमॉस्फेयर, इससे ज्यादा नहीं. और टेम्परेचर कितना पे है ये? 298 केल्विन पे, ठीक है? अदरवाइज वो फट जाएगा. आगे देखो,
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा तुम्हें बताना है कि नाइट्रोजन, अब गाइस एक गलती नहीं करोगे, नाइट्रोजन का फॉर्मूला N नहीं होता, इट इज N2, क्योंकि नाइट्रोजन N2 की तरह एग्जिस्ट करे, ठीक है। बताओ कि कितना नाइट्रोजन ग्राम्स में हम इसमें पुट कर सकते हैं सेफली इन दिस कंटेनर एट दिस टेम्परेचर। भाई हद से हद मैक्सिमम कितना नाइट्रोजन इसमें जा सकता है, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन। स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब जब भी हम गैसियस स्टेट पढ़ते हैं तो पहली तो एक ही इक्वेशन हमें आती है, PV इज इक्वल टू nRT, यही आती है ना। अब यहाँ पर पुट करके देखो क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो क्या लिख देंगे PV बाय RT। तो प्रेशर का वैल्यू पुट करो 2, वॉल्यूम पुट करो 2.24, आर की वैल्यू देखो, यहाँ पर प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम है लीटर में, तो आर क्या लिखेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है 298, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द आंसर कमिंग एज। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं 2 into 2.24, ठीक है। इसको डिवाइड करो 0.0821 which has to be divided by 298, so मेरा आंसर आ रहा है 0.183 मोल्स, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, नाइट्रोजन का मास इन ग्राम्स, तो ये तो सबको पता ही है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना हो गया, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो 28 into 0.183, बताओ व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर व्हिच यू आर गेटिंग। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 5.12, ठीक है, कि हद से हद हम 5.12 ग्राम्स नाइट्रोजन को भर सकते हैं। अब ये तो आंसर है नहीं, ये तो है नहीं। अब तुम सोचोगे मैम या तो बी आंसर होगा या डी आंसर होगा। भाई साहब ध्यान से, मैंने बोला कि अगर 5.12 भरोगे ना तो कट टू कट सीधा 2 atm का प्रेशर आएगा, ठीक है। और जैसे ही तुमने 5.13 भी किया ना तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, कंटेनर फट जाएगा, है ना। तो हम 5.12 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, है ना, तो कम ही लेना है। तो आंसर विल नॉट बी 5.6, आंसर विल बी डी। आगे समझ, कंफ्यूज नहीं होना कि मैम 5 आ रहा था तो हमने तो 5.6 मार्क कर दिया। भाई साहब अगर 5.12 मैक्सिमम है तो उससे जरा सा ज्यादा करोगे तो कंटेनर फट जाएगा ना, तो हम उससे कम तो रख सकते हैं बट ज्यादा नहीं रख सकते। सो आंसर विल बी डी। समझ आया सबको क्वेश्चन। सो गाइज अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, ऑल दीज आर योर पास्ट ईयर क्वेश्चंस फॉर केवीपीवाई 2018 और 19 के मिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर यू आर लाइकिंग द वीडियो, है ना, और वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो सो दैट मेनी स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ ऑल द थियरी, ऑल द डिटेल विच आई। चलो, so having done this, let us move on to our next question. The correct order of energy of 2s. अच्छा एक काम करो, ऐसा क्वेश्चन एक और भी है, so let's wait for this question, पहले ये क्वेश्चन करके। पिछला क्वेश्चन मैंने क्यों छुड़वाया उसका आंसर अभी 5 मिनट बाद देती हूँ। So you have to tell me the most polarizable ion among the following. इन चार में से सबसे ज्यादा polarizable ion कौन सा है। तो चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन देखो, और बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस केवीपीवाई में पूछे जाते हैं, कोई बहुत ही डरावने टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केवीपीवाई अगेन इट्स योर कप ऑफ टी। देखो चलो मैं एक बात बताती हूँ, पोलराइजेबल का मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनो। कोई चीज अगर ज्यादा बड़ी होगी ना, है ना, और ये उसका न्यूक्लियस है, तो अगर किसी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी बड़ा होगा तो इसका मतलब कि उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड नहीं कर पाएगा। लेट मी रिपीट, क्या बोला मैंने, अगर कोई चीज बड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि उसका न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर नहीं कर पा रहा। मतलब अगर कोई बाहर से एक एटम आए तो वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत इजीली डिस्टॉर्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब कोई बाहर का, मतलब कोई कैटायन आएगा ना तो वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने टुवर्ड्स अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेबल। जो अपने स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड से डिस्टॉर्ट हो सकता है, दैट इज पोलराइजेबल। अभी मैंने क्या बताया, जो जितना बड़ा उसकी पोलराइजेशन ज्यादा। तो F माइनस, Cl माइनस, Na प्लस और I माइनस में से सबसे बड़ा कौन, I माइनस। सो सबसे ज्यादा पोलराइजेबल कौन, I माइनस।
ठीक है। सो जिन जिन लोगों का बी आंसर आया है, वेरी गुड गाइस। तो अगर तुम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हो तो तुम धीरे धीरे देखना, हर मंडे अगर तुम मेरे साथ केमिस्ट्री की क्लासेस अटेंड करते हो और ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं सिखा रही हूँ अगर इनको सीखने की कोशिश करते हो, भाई साहब यू विल फॉल इन लव विद केमिस्ट्री, है ना। चलो, सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अगेन केवीपीवाई वालों को, चाहे केवीपीवाई वाले हो या लेट्स से नीट वाले हो या जेई मेंस वाले हो, दे ऑल आर इन लव विद चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। तो उनको बहुत बहुत पसंद है, हर साल कम से कम 2-3 क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज़ीनॉन एटम इन XeF4, XeF4 में ज़ीनॉन की हाइब्रिडाइजेशन बता। अगेन दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा केमिकल बॉन्डिंग का पूरा वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा। आई थिंक आई हैव टेकन अराउंड 2.5 आवर्स, ठीक है, और इन 2.5 घंटे में पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग एकदम बढ़िया लेवल का आई हैव टॉट अगेन ऑन दिस चैनल अनअकैडमी क्लास 11-12। तो अगर अभी तक नहीं देखा, यू शुड वॉच इट। चलो, तो कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। एक फॉर्मूला, देयर इज अ सेपरेट वीडियो आई हैव रिकॉर्डेड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, उसमें एक शॉर्टकट सिखाया था और बताया था कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाली जा सकती है। बहुत ही इजी शॉर्टकट है, करके देखो। तो अच्छा, 2 तरीके बताती हूँ, ठीक है। जैसे XeF4 क्या है, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ज़ीनॉन कितने, 8 प्लस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड कितने, 4। तो आंसर कितना हो गया, 8 + 4 12/2 6, ठीक है। तो 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2, 3 4 5 और 1 6। सो आंसर विल बी C, sp3d2। आया सबको समझ? अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रखना तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, ज़ीनॉन 4 फ्लोरीन बना दो जरा, ठीक है। और ज़ीनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, आई मीन 8 तो उसके खुद के होते हैं। तो यहाँ पे बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब गिनते जाओ 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको 6 का मतलब होता है sp3d। चाहे इससे कर लो या फॉर्मूला बेस्ड कर लो, इट्स ऑल अप टू यू, आंसर सेम आएगा। आंसर इज sp। समझ आ गया सबको? आई होप ये सारे क्वेश्चन सब लोगों को क्लियर है ना। सो अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, लेट अस मूव फर्दर विद आवर 2 मार्कर क्वेश्चन। तो 1 मार्कर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने अभी फॉर टाइम बिंग छुड़वाया है। क्यों छुड़वाया है इसका रीजन अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। चलो, so guys, now are you ready for the 2 marker questions that we have? ठीक है, 1 marker questions अच्छे लगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 1 marker you can do, तो अब 2 marker questions करके देखते हैं। Okay, so here on the screen it's the first question. Awesome question, guys. Like, I am totally in love with the question. P block elements. चैप्टर नंबर मेरे को नहीं याद एनसीईआरटी का, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 14, एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। PbO2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, 4 रिएक्शंस हैं, बताओ PbO2 किस पर्टिकुलर रिएक्शन से निकलती है। क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ PbO plus HCl, thermal decomposition of PbNO3 twice at 200 degree C, reaction of Pb3O4 plus HNO3 या the reaction of Pb with air at room temp। सोचो, think about the answer। चारों के चारों ऑप्शंस एनसीईआरटी में as such given है। बताओ what is the answer to this question? किया सबने? Everyone has tried, so should I tell the answer? कर रहे हो ट्राई? फटाफट से बताओ आंसर्स कमेंट सेक्शन में। देखो, द रिएक्शन ऑफ PbO plus HCl, मैं सारे के सारे ऑप्शंस करके दिखाती हूँ। जब हम PbO की HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जो लेड ऑक्साइड है ना, दैट इज एम्फोटेरिक, ये एसिड और एसिडिक बिहेवियर भी शो करती है, बेसिक भी करती है, बट इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इट इज एक्टिंग एज अ बेस। तो बेस प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, तो PbCl2 प्लस वाटर, मतलब PbO2 तो नहीं बन रहा, A इज नॉट आवर ऑप्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, एक बात बताती हूँ, जब तुम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में, अगेन एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, तो वहां पर ये लाइन दोबारा लिखी हुई है। तो यही की यही लाइन यू विल बी गेटिंग इन एनसीईआरटी इन 2 डिफरेंट चैप्टर्स, एस ब्लॉक में भी, पी ब्लॉक में।
तो होता क्या है, लेड नाइट्रेट इज बिहेविंग एग्जैक्टली द सेम वे जैसे कि एल्कलीन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स बिहेव करते हैं, ठीक है। तो जब मैंने लेड नाइट्रेट लिया PbNO3 ट्वाइस, और अगर मैंने इसको 200 डिग्री C पर हीट किया तो ये देगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। समझ आया? मतलब PbO2 तो मिला नहीं, तो कहने का मतलब कि भैया ऑप्शन तो अच्छा था बट सही आंसर नहीं था, ठीक है। अच्छा, पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं, द रिएक्शन ऑफ लेड विद एयर एट रूम टेम्परेचर। देखो लेड एयर के साथ रूम टेम्परेचर पे तो बहुत स्लो रिएक्शन शो करता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं तो भी ये बनाएगा हद से हद, तो क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड, मतलब PbO2 तो यहाँ पर भी, ठीक है। अब बाकी बचा ऑप्शन कि मैम आंसर तो है Pb3O4, चलो ये तो समझ आ गया कि ये आंसर है, बट इसका लॉजिक क्या है, हमें तो लॉजिक समझना है। आज ये क्वेश्चन को हम रट लेंगे, है ना, एंड पता चले कि यही रिएक्शन आ गई दोबारा पेपर में और हमने तो रटा था, तो सारा का सारा फ्लॉप हो जाएगा गेम, है ना। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मगिंग अप। तो मैं एक लॉजिक बताती हूँ, देखो कहीं पर भी तुम्हें Pb3O4 दिखाई देना, इट इज नोन एज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। ध्यान से मेरी बात सुनो 5 मिनट के लिए, इट्स अ मिक्स्ड ऑक्साइड। ये किस किस से बना है, ये बना है PbO प्लस PbO2 प्लस PbO, मतलब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं PbO के और एक मॉलिक्यूल होता है PbO2 का। तो अब करके देखो Pb3O4, ठीक है। अब जब इसको मैंने डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ डाला ना, मेरी बात सुनो, तो PbO2 तो डिसॉल्व ही नहीं होता, इट विल रिमेन एज सच, ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो जो लेड ऑक्साइड है ये नाइट्रिक एसिड के साथ डिसॉल्व होके क्या बना लेगा, PbNO3 ट्वाइस प्लस वाटर, और बेचारा PbO2 एज सच रह जाएगा। तो फाइनली PbO2 मिला कहाँ, फाइनली PbO2 मिला जब हमने रिएक्शन कराई Pb3O4 की विद HNO। आगे समझ? तो देखो चारों की चारों रिएक्शन समझ आ गई कि PbO अगर HCl के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाएगा, PbCl2 प्लस वाटर। पॉइंट नंबर 1, PbNO3 ट्वाइस को हीट करते हैं, ये रिएक्शन तो बहुत बार पेपर में आती है, ये बनाता है PbO प्लस NO2 प्लस O2, और NO2 को याद रखोगे ब्राउन कलर की गैस, ठीक है। मूविंग फर्दर, लेड अगर एयर के साथ रूम टेम्परेचर पे बहुत स्लो रिएक्शन होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी PbO बनेगा, ठीक है। और कहीं पर भी Pb3O4 दिखे तो इसका क्या मतलब है, PbO प्लस PbO प्लस PbO2, और PbO2 तो सॉल्यूशन में जाएगा नहीं, एज सच रह जाएगा। तो PbO की रिएक्शन होगी नाइट्रिक एसिड के साथ, बनेगा PbNO3 ट्वाइस प्लस वाटर और PbO2 एज सच रहेगा, ठीक है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फाइन। तो गाइस अगर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, जिस तरीके से मैंने समझाया उससे तुम्हारा फायदा हुआ, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, सिर्फ तभी पता चलेगा अगर वीडियो को लाइक करोगे। तो फटाफट लाइक कर दो सो दैट आई गेट टू नो कि तुम्हें समझ आ रहा है। चलो, so moving on to our next question. This question is again, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर से। स्टेट्स ऑफ मैटर बताओ, जो है ना वैन डर वाल्स गैस, वहां से क्वेश्चन है। For 1 mole of van der Waals gas, the compressibility factor Z is equal to PV by RT at a fixed volume will certainly decrease if A and B are the standard parameters for van der Waals gas. B increase करता है, A decrease करता है constant temperature पे, B decrease करता है, A increase करता है constant temperature पे। Temperature increases at constant A and B, B increases at constant A and temperature। चलो करते हैं इसका आंसर। तुम्हें कुछ आइडिया है, डू यू हैव एनी आइडिया कि इसका आंसर कैसे करना है, तो बता दो। अगर हिंट चाहिए तो मैं दे देती हूँ। जो A होता है ना वैन डर वाल्स कांस्टेंट, इसका मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल्स में कितने अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसको A से डिटरमिन कर, ठीक है। और जो B होता है वो वैसे तो देखो साइज पे डिपेंड करता है, मतलब इट इज साइज फैक्टर, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना एक्चुअल वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है, वो साइज फैक्टर हो गया। या कई बार तुम बोल सकते हो कि रिपल्सिव फोर्सेस, साइज बड़ा होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, तो रिपल्शन को भी बताता है, ठीक है। देखो करके देखते हैं। अच्छा तुम्हें ये पता है कि ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है ना Z, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस, ठीक है। कि वॉल्यूम रियल गैस का कितना है बाय वॉल्यूम आइडियल गैस का कितना है। अब एक बात बताती हूँ, वो कह रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिक्रीज करेगा, मतलब मुझे Z लेस देन 1 के बारे में
याद रखना, अगर Z की वैल्यू 1 है तो वो आइडियल गैस है, ठीक है। और मुझे किसके टुवर्ड्स जाना है, जब Z की वैल्यू लेस देन 1 है। Z की वैल्यू लेस देन 1 मतलब, रट्टा नहीं मारो, सोचो, Z की वैल्यू लेस देन 1 मतलब रियल गैस का वॉल्यूम कम होगा ना कंपेयर टू आइडियल गैस का वॉल्यूम। मतलब रियल गैस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, कहने का मतलब कि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं। तो कहीं पर देखना A इंक्रीज दिख रहा है, B इंक्रीज, A डिक्रीज, B डिक्रीज, A इंक्रीज, ये सही है ना। A इज इंक्रीजिंग, वो कह रहा है कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो ना तो ये ना ये ना ये, सो B विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, दोबारा बताती हूँ क्या करना है। उसने बोला कि Z को डिक्रीज करना है, मतलब Z लेस देन 1 रखना है, और Z होता क्या है, V रियल बाय V आइडियल, मतलब मुझे Z लेस देन 1 रखना है, तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आइडियल गैस के वॉल्यूम से कम करना है। रियल गैस का वॉल्यूम कब कम होगा, जब मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट कब करेंगे, जब A की वैल्यू बढ़ेगी। आगे समझ। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर फॉर 2 मार्क्स। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अगेन, अगर अच्छा लगा क्वेश्चन तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, ठीक है। चलो, तो गाइज लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम्हें समझ आएगा कि मैम ने क्यों कहा था कि वो वाला क्वेश्चन 2 मिनट के लिए छोड़ो, अदरवाइज 2-2 बार मेहनत करते, तो मैंने सोचा कि एक ही बार मेहनत करा। देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, एनर्जी ऑफ 2s of hydrogen is greater than 2s of lithium, greater than 2s of sodium, 2s of potassium. The maximum number, oh my god, तो जिन बच्चों ने पहले आंसर नहीं दिया था, देखो KVPY ने 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, कहाँ है मेरा, देखो ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बताती हूँ, मैंने अभी पेपर चेक किया था, और एक और क्वेश्चन का है, ये पूरा का पूरा 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो, जिन्होंने 18 का पेपर भी कम से कम ट्राई किया होगा ना, उनका 2019 का ये क्वेश्चन देखो कैसे सही हो गया। तो कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, repeat भी in the sense exact repetition of the question. देखो, the maximum number of electrons in a shell with principal quantum number n is equal to 2n square. ये सही बात नहीं है, अभी तो मैंने बोला था, उन्होंने पहले दे रखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n स्क्वायर प्लस 2, फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कितने होते हैं, 2n स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है ना। तो और उसने पूछा करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो सेकंड किस किस में है, इसमें है, इसमें है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब 1 और 3 में से देख लो कौन सा करेक्ट है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल इज ड्यू टू स्मॉलर एक्सचेंज एनर्जी। अरे एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है कि अगर एक्सचेंज एनर्जी लार्ज होगी, ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, इसी वजह से हाफ फिल्ड सबशेल स्टेबल होते हैं। तो 3 भी आंसर नहीं है हमारा, तो ये भी गलत हो गया। तो इतना तो क्लियर हो गया कि मैम ए आंसर है ना। अब देखना, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें देखो ये क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन की एनर्जी 2s की ज्यादा है लिथियम से, सोडियम से, पोटेशियम से, है ना। ये देखना जरा, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, अब तुम्हें पता चल गया कि मैम आंसर ए है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा था कि जो बच्चे उस क्वेश्चन को कर लेंगे, देखो तुम्हें यही दिखाने के लिए कि 2018 का क्वेश्चन और 19 का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। और अभी दिखाया था ना, कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, ये देखो उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहाँ पर रिपीट है। यहाँ लिखा हुआ था n स्क्वायर प्लस 2, जबकि आंसर कितना था 2n। ठीक है, तो अब तो विश्वास करते हो ना कि अगर मैं तुम्हें केवीपीवाई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो मतलब 2020 का 21 का पेपर जब आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम भी हो सकते हैं, सेम नॉट सेम एग्जैक्टली बट सिमिलर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका भी करके दिखा देती हूँ। ये पता है ना फॉर्मूला E इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर होता है ना, ये फॉर्मूला पता है। तो अब लगाना, जैसे पोटेशियम के लिए लगाओगे तो z की वैल्यू क्या लिखोगे, सोडियम के लिए लगाओगे तो z की वैल्यू क्या होगी, लिथियम के लिए लगाओगे z की वैल्यू क्या, और हाइड्रोजन के लिए लगाओगे तो z की वैल्यू क्या। और क्योंकि 2s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू तो हमेशा 2 है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, नेगेटिव फिक्स है। तो जितना ज्यादा हमारा z होगा, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, मतलब उसकी नेगेटिव एनर्जी उतनी ज्यादा, मतलब कहने का उसकी ओवरऑल एनर्जी उतनी कम हो जाएगी।
है ना। लाइक मैंने बोला कि E इज इक्वल टू -13.6 और एक जगह मैं बोल रही हूँ E इज इक्वल टू -26, तो कम कौन सी है? -20। यही हो गया ना कि पोटेशियम की कम, फिर सोडियम की, फिर लिथियम की और फिर हाइड्रोजन। समझ आ गया कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता है किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, सो ये लो 2 मार्क का क्वेश्चन भी हो गया, लगे हाथ 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो गया। चलो तो अब एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ एंड आई विल गिव 1 क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू एज होमवर्क। सो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं एंड दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। आई वांट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन नॉट इन द लाइव चैट्स बट इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द लेक्चर इज कंप्लीट। ठीक है, लेक्चर का पीडीएफ इजीली मिल जाएगा, वो वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे दे देना। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कंटेन्स 46.78% ऑफ अ हैलोजन X। अच्छा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर हैलोजन कितना है? 46.78%। सही बात है। When 2 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज हीटेड, अच्छा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था A, जब मैंने इसको हीट किया फ्यूमिंग HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3। अरे अरे अरे, कोई दिक्कत की बात, सब कुछ उसने खुद दे दिया है। ये कंपाउंड है A, ठीक है, जिसके अंदर X दे रखा है, उसको नाइट्रिक एसिड और AgNO3 के साथ हीट किया और क्या बन गया? सिल्वर हैलाइड AgX। ठीक है, बताओ कि X कौन था? फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन या आयोडीन? कोशिश करके देखो। अगर जिनको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत बेसिक। मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो अगेन अनअकैडमी क्लास 11-12 साक्षी वोरा नाम सर्च करो, मोल कॉन्सेप्ट की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है, चलो करके देखते हैं। देखो अगर कितना था A 2 ग्राम्स था तो 2 ग्राम का 46.78% क्या है? हैलोजन X। तो X कितना है बताना फटाफट कैलकुलेट करके। 2 ग्राम्स का 46.78% कितना होता है? तो ये आ जाएगा 0.9356 ग्राम। तो ये समझ आ गया कि मैम हैलोजन कितना है? 0.9356। ठीक है, और टोटल सिल्वर हैलाइड कितना दे रखा था? 2.21 ग्राम। बहुत बढ़िया, तो सिल्वर प्लस कितना आ जाएगा? 2.21 में से 2.21 में से जरा माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 1.2744 ग्राम। चलो बहुत ही बढ़िया, इतने क्वेश्चन से मुझे ये पता चल गया सिल्वर कितना है और हैलोजन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला क्या था? सिल्वर हैलाइड। तो क्या मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag प्लस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X माइनस। ठीक है ना, यही तो होता है। अब Ag प्लस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास 1.2744 बाय मोलर मास कितना होता है सिल्वर का? 108 दे रखा है उसने, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। हैलोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगी? 0.9356 बाय मोलर मास निकाल लो। तो सॉल्व करके देखो मोलर मास कितना आ रहा है। आई होप 80 आएगा आंसर, फिर भी एक बार चाहो तो सॉल्व कर लो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। करो करो सॉल्व करो, आई थिंक यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 80। तो हमारा आंसर आएगा ब्रोमीन, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया सबको? ठीक है, तो गाइज ये कुछ मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करे आज तुम सबके साथ। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने देखा 2018 के थे, कुछ क्वेश्चंस 2019 के थे, और ये तुम्हारा एक होमवर्क है। अगेन दिस इज 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019। आई विल बी वेटिंग फॉर द आंसर कि ABCD क्या आंसर है। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ नो वरीज, अगेन अगले मंडे को मॉर्निंग 8 to 9 आई विल बी टीचिंग एंड सब कहो तो आई विल बी टेकिंग दिस क्वेश्चन अगेन। ठीक है, ओके सो गाइस ये तो था हमारा KVPY की क्लासेस। अब जो बच्चे नॉट ओनली KVPY बट CBSE के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए दिस इज द टाइम टेबल विच यू कैन फॉलो। CBSE की क्लासेस मॉर्निंग 9 बजे से शुरू हो जाती हैं। जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी योर मॉर्निंग 9 AM क्लासेस विल स्टार्ट। सिमरन मैम और प्राक्षी मैम है ना, ये बायो पढ़ाते हैं 11th के स्टूडेंट्स को, देन 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 एंड यहाँ पर आएगा 12 PM सुमित सर की क्लास होगी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया मॉर्निंग की क्लास। इसके बाद देखो 1 बजे ग्रेड 12 की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। पहले छवि मैम, मोनिका मैम, इंद्रजीत सर, गणेश सर, तो 5 बजे तक तो रेगुलर क्लासेस चलती है। उसके बाद डेली 6 PM to 7 PM आई मीट ऑल ऑफ यू और यूट्यूब पे ही। और अभी हमारा चल रहा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ठीक है। सो GOC की क्लासेस आर गोइंग ऑन, तो हर रोज 6 to 7 यू कैन अटेंड माई रेगुलर क्लासेस ऑन YouTube, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा KVPY का टाइम टेबल अभी मेरी मंडे को मॉर्निंग 8 to 9 केमिस्ट्री की क्लास थी, है ना। ट्यूसडे को 8 to 9 तुम्हारी मैथ्स की क्लास होगी, वेंसडे को 8 to 9 फिजिक्स एंड थर्सडे को 8 to 9 बायोलॉजी। मतलब हफ्ते के 4 दिन तुम पूरे की पूरी KVPY की तैयारी कर सकते। इजंट इट गुड, है ना। ओके, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम, अब बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा, ये टाइम टेबल कहीं सेंड कर दो, है ना। तो नो वरीज, ये टाइम टेबल इज ऑलरेडी देयर इन दिस चैनल। टाइम टेबल में अगर कोई चेंज होगा तो अगेन यू विल बी नोटिफाइड अगर यू आर अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन करो सो दैट एवरी सिंगल नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड बाय ऑल ऑफ, फाइन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक मेरे साथ अभी वो बच्चे भी हैं जो ये पूछ रहे थे कि हमें सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए, क्या क्या फायदे। देखो, YouTube की क्लासेस आई अग्री बहुत अच्छी होती है, बट एक चीज जो मुझे नहीं पसंद है वो ये कि इट इज वन वे। मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, बट मुझे नहीं पता चल पाता कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं, है ना। अगर किसी पॉइंट पे तुम्हें कोई डाउट है तो हो सकता है मैं तुम्हारा चैट ना पढ़ पाऊं, है ना, और वो डाउट हमारा माइंड में एज सच रह जाता है, तुम मेरे से इंटरैक्ट ही नहीं कर पाते हो, कुछ और गाइडेंस चाहिए होती है, तो वो चीजें यहाँ पर नहीं पॉसिबल है ना। तो अगर ये सारी फीचर्स तुम्हें चाहिए तो डेफिनेटली गाइस यू कैन गो फॉर अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन। ये होती कैसे है अभी बताती हूँ। देखो, दीज आर बेसिकली लाइव क्लासेस। बहुत सारे एजुकेटर्स, मेरे जैसे कितने सारे एजुकेटर्स है ना, जो बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पास आउट है, वो रेगुलर लाइव क्लासेस लेते हैं। मतलब रेगुलर एक टाइम टेबल है, लाइक मेरी लाइव क्लासेस का टाइम है 2 PM to 3 PM, 2 से 3 तुम मुझे सर्च करो, हमेशा मैं लाइव हूँ, ठीक है। तो डेली आई हैव अ क्लास फ्रॉम 2 to 3, ऐसे ही हर टीचर का अपना अपना टाइम है। तो हर टीचर का एक रेगुलर कोर्स चलता है, तो अगर रेगुलर कोर्सेज चलेंगे तो तुम्हें टेंशन की जरूरत ही नहीं, अपने आप सिलेबस तो खत्म हो ही जाएगा क्योंकि एनफ नंबर ऑफ क्लासेस विल बी गिवन, है ना। आगे देखो, लाइव क्लासेस में टीचर तुम्हारे साथ है, तो तुम जितना इंटरैक्ट करना चाहो विद योर टीचर तुम करो। तुम्हें कोई छोटा सा डाउट है, सर या मैम जो भी पढ़ा रहे हैं उनको बोलो सर प्लीज वेट, मुझे ये डाउट क्लियर कर। जैसे ही तुम डाउट पूछोगे सर वो चीज रुकेंगे और सारी क्लास को तुम्हारे वाला डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम डाउट लेके आगे बढ़ते हैं ना तो हमें वो 100% एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। तो अगर डाउट्स क्लियर हो जाए तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी बात होती है ना। नाउ मूविंग फर्दर, देखो हर लाइव क्लास में हर टीचर लाइव पोल्स लेता है। नाउ व्हाट आर लाइव पोल्स, जैसे सर ने एक क्वेश्चन दिया, मान लो ये है, ठीक है, तो इसका पोल स्टार्ट कर देते हैं। मान लो 4 ऑप्शन है ABC। अब मुझे पता है इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों को 45 सेकेंड्स चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो वो हद से 45 सेकेंड लेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, टाइमर सेट कर दिया। अब जैसे ही मैंने टाइमर सेट किया तो तुम्हारे माइंड में टाइम चलने लग गया कि मैम मुझे फटाफट फटाफट सोचना है, तो ठीक है, तुम अपने माइंड को उसके साथ क्या पैरेलल चला सकते हो। तुम्हारे माइंड को आदत हो जाती है, तो शुरू के दिन में थोड़ा सा दिक्कत होगी कि मैम फटाफट नहीं सोचा जाता, बट दैट लीड्स टू अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, फटाफट सोचने की हैबिट आएगी, ठीक है। फिर थोड़े दिन तुम एरर्स करोगे, कुछ गलती करोगे, गलत मार्क कर दोगे। यही चीज हम पेपर में गलत मार्क कर देते हैं जब एग्जाम का प्रेशर होता है। तो अगर डेली हम उस चीज की प्रैक्टिस करें तो जब तक एग्जाम आएगा तो डर नहीं लगेगा ना, ठीक है। और यहाँ पर फिर लीडर बोर्ड आता है। मतलब लीडर बोर्ड क्या है, लेट्स से कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन थे जिन्होंने सही आंसर दिया, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड में पता चलती, ठीक है। इसके अलावा यू विल ऑल्सो बी गेटिंग एक्सेस टू टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आई हैव सीन कि यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, बट यहाँ अनअकैडमी पर यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। एक बार सब्सक्रिप्शन लो, यू विल बी गेटिंग कंप्लीट एक्सेस टू टेस्ट सीरीज ऑल्सो। इतने सारे टेस्ट हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, बाय मंथली टेस्ट, यू कैन गो फॉर ऑल द टेस्ट। जितना तुम मैनेज कर सकते हो तुम उतना करो, ठीक है। कई बच्चे ज्यादा टेस्ट देना पसंद करते हैं, कई कम टेस्ट देना पसंद करते हैं, सो यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, फाइन। उसके बाद वन मोर थिंग विच इज सुपर ऑसम, विच इज लाइव डाउट क्लियरिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि सर मेरे को ना उस बुक में से क्वेश्चन था बट अब बुक घर भूल गई, कोई बात नहीं, यू टेक अ पिक्चर, अपलोड द पिक्चर इन द क्लास, सर सबके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डाउट्स ऑल, यू हैप्पी, सर हैप्पी, सारे कुछ, ठीक है। सो इतने सारे फीचर्स के साथ अगर मैं बोलूं
टीचर पे कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हें अगर इस बैच में पढ़ना है, इस बैच में पढ़ना है, मुझसे पढ़ना है, किसी और टीचर से केमिस्ट्री पढ़नी है ना, फिजिक्स सर से पढ़नी है, किसी और सर से फिजिक्स पढ़नी है, सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। तुम्हारी ट्यूनिंग जिसके साथ बैठती है तुम उनके साथ पढ़ाई करो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहे, ठीक है। तो ये इतने सारे अगर तुम्हें फीचर्स, और अगर मैं अब तुम्हें प्राइस बताऊं ना, तो गाइस प्राइस इज नथिंग इन टर्म्स ऑफ जो तुम्हें मिल रहा है। देखो अब हाउ टू डू, पहले तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। अगर प्लस नहीं भी लेना, इट्स अप टू यू, बट यू कैन एटलीस्ट अटेंड द स्पेशल क्लासेस। These special classes are free of cost, हर बच्चा अटेंड कर सकता है, हर टीचर की अपनी अपनी आईडी है, लाइक माई आईडी इज वोरा 2704। इस आईडी को फॉलो करो, डेली 2 PM to 3 PM मेरी स्पेशल क्लास होती है, ठीक है। नाउ स्पेशल क्लासेस आर अ सबसेट ऑफ प्लस क्लासेस। अगर तुम्हें देखना है कि प्लस कैसे है मैम, खरीद लें, पैसे खर्च दें, बाद में पता चले नहीं मजा आया, तो क्या करो, पहले स्पेशल क्लासेस अटेंड करो, 3-4 दिन स्पेशल क्लास अटेंड करो, ठीक है। हर टीचर की करो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि वर्थ इट है, ठीक है, खुद से जज करो, तो डेफिनेटली गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। अब अगर डिसाइड कर लिया कि मैम प्लस लेना है, तो क्या करोगे, अपने ग्रेड में जाओ, 11th में जाओगे, 12th में। 11th में हो तो यू शुड बेसिकली गो फॉर अ 2 year सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ज्यादा सस्ता पड़ता है। 12th में हो तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर 1 year सब्सक्रिप्शन, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ। अब देखो, जितना लंबा कोर्स लोगे ना, देखो अगर 12 months का कोर्स लोगे तो लगभग पड़ता है 1125 पर मंथ, लगभग 1000 का। 24 मंथ्स का लोगे तो 930 का पड़ता है, और 3 साल का लोगे, लेट्स से कोई बच्चा 10th में अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है, तो देखो सिर्फ 900 पर मंथ का कोर्स। तो जितना लंबा सब्सक्रिप्शन लोगे उतना कोर्स ज्यादा सस्ता पड़ता है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यू कैन यूज दिस कोड साक्षी लाइव, सो इफ यू यूज दिस कोड, इन पे भी 10% डिस्काउंट तुम्हें मिलेगा। और अब 1 year का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 13,500 का, 2 year का पड़ेगा जस्ट 22,500, और सारे के सारे फीचर्स विल बी अवेलेबल, ठीक है। सो जो बच्चे प्लस पे आना चाहते हैं, मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस कोड, ठीक है। पैसे कम भरो, ज्यादा अच्छी बात है, क्यों एक्स्ट्रा पैसे भरोगे, और मैम को तो सपोर्ट करते ही रहते हो, है ना। चलो, सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्लस में इंटरेस्टेड थे। तो अगर सोच लिया है कि यस मैम हमें प्लस पर आना है, तो ये कोड यूज कर लेना, और बहुत जल्दी जल्दी 10% ऑफ लेके फटाफट से एक अच्छी स्पिरिट के साथ, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ प्लस पर आ जाओ, ताकि हम प्लस पर सारी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। और जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, मे इट बी गोइंग फॉर KVPY, गोइंग फॉर नीट, गोइंग फॉर JEE, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है। हमारी विशेष, हमारा सपोर्ट इज ऑलवेज देयर विद यू। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज बतानी हो, तो कमेंट्स में लिखना, आई गो थ्रू द कमेंट्स ऑफ ऑल द वीडियो, ठीक है। तो आज तो मेरी तरफ से इतना ही गाइज। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, और अगर यूजफुल लगा तो मेक श्योर यू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि सबका भला हो सके, ठीक है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, लेट मी वाइंड अप, आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय।